اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تھا، ایک ملکہ جس کی طاقت سے پوری قوم کانپتی تھی، اور ایک بادشاہ جس کے آگے انسان بھی، جن بھی اور ہوا بھی سر جھکاتے تھے، ایک خط جس نے 2 سلطنتیں ہلا ڈالیں۔ اور ایک ملکہ جو سچ کو پہچان گئی، مگر ان کی نسلیں۔ جب تک مریب ڈیم کھرائے ہماری سلطنت کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا خوف بیکار ہے۔ کسی نے نہیں سنا۔ صدیوں کی محنت ایک رات میں۔ عرب کے جنوبی پہاڑی علاقوں میں بہت پہلے ایک قوم رہتی تھی۔ یہ تھی قوم سبا۔ اللہ نے اس قوم کو ایسی زمین دی تھی جسے دیکھ کر دور دور کے قبیلے حیران ہوتے تھے۔ پہاڑوں پر برسات ہوتی اور پانی تیز روانی سے وادیوں کی طرف اترتا، لیکن جس پانی سے تباہی آ سکتی تھی، سبا کے لوگوں نے اسے زندگی بنا دیا۔ 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان، شہر مارب کے قریب، انہوں نے ایک عظیم باندھ تعمیر کیا۔ اسے تاریخ میں یا مارب ڈیم کہا جاتا ہے۔ باندھ کے پیچھے پانی جمع ہوتا، پھر نہریں بنائی گئیں جو وادیوں اور کھیتوں تک پانی پہنچاتی تھیں۔ اس پانی سے کھجور کے باغ، انگور کی بیلیں اور اناج کے کھیت اگتے تھے۔ وادی سبز ہو گئی، باغ اتنے تھے کہ دور سے دیکھنے پر پورا علاقہ ہرا سمندر لگتا تھا۔ قرآن بعد میں اس زمین کو اس طرح بیان کرتا ہے: 2 باغوں والی زمین، تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے۔ لبان اور خوشبودار ریشوں کی تجارت کرنے والے تاجر یمن سے شام تک سفر کرتے ہوئے سبا میں ضرور رکتے تھے۔ مارے باندھ نے صرف پانی نہیں روکا، اس نے سبا کی دولت، اس کی زندگی اور اس کی طاقت کو قائم رکھا۔ مگر ہر نعمت کے ساتھ ایک امتحان ہوتا ہے۔ اس وقت سبا کے لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاتا، وہ سمجھتے تھے کہ ان کی زندگی اسی سے جلتی ہے، اور اس قوم پر حکومت کرتی تھی ایک عورت۔ اس کا نام تھا بلقیس۔ بلقیس کا دربار شہر مارب میں تھا۔ پتھر اور لکڑی سے بنا ہوا قصر، اندر بڑے ستون اور مشورے کے لیے ایک وسیع ہال۔ یہاں قبائل کے سردار اور مشیر جمع ہوتے۔ بلقیس عقل مند حکمران تھی۔ وہ جنگ میں جلدی نہیں کرتی تھی، وہ مشورہ لیتی تھی، اور اس کے دور میں مارب باندھ کی مرمت، نہرین اور کھیتی ٹھیک چل رہی تھی۔ سلطنت دولت مند تھی، لیکن عقل مند حکومت کے باوجود قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب سے دور شام کی طرف ایک اور سلطنت تھی، مگر یہ عام سلطنت نہیں تھی۔ یہ تھی حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی حکومت۔ اللہ نے انہیں ایسے اختیارات دیے تھے جو کسی اور بادشاہ کو نہیں ملے۔ انسانوں پر حکومت، جنوں پر اختیار، اور ہوا تک اللہ کے حکم سے ان کے لیے مسخر تھی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام صرف قوت پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے پرندوں کی صف بندی دیکھی، پھر ان کی نظر رک گئی۔ مجھے ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اگر وہ وجہ کے بغیر غائب ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ تبھی آسمان سے ایک پرندہ نیچے آیا۔ اس نے سر جھکایا اور بولا، میں آپ کے پاس سبا سے یقینی خبر لایا ہوں۔ دربار خاموش ہو گیا۔ میں نے وہاں ایک عورت کو حکومت کرتے دیکھا۔ پھر ہدہد نے وہ بات کہی جو اصل مسئلہ تھی۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام نے
उन्होंने एक खत लिखा, फिर हुदहुद से कहा, ये खत ले जाओ और उन तक पहुंचा दो, फिर देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। हुदहुद ने खत उठाया और लंबी परवाज भरी। बिल्कीस ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। खत छोटा था मगर उसके अल्फाज सीधे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरे पास फर्मा बरदारी के साथ आ जाओ। फिर उसने अपना मजलिसे मशवरा बुलाया। बिल्कीस ने कहा, ए सरदारो, मेरे पास एक मोहतरम का खत आया है। उसने पूरा खत उन्हें सुना दिया। एक लश्करी सरदार फौरन बोला, हम ताकत रखते हैं और जांग का तजुर्बा भी। लेकिन बिल्कीस ने सोच समझकर जवाब दिया, बादशाह जब किसी बस्ती में दखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। मैं उन्हें एक तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि वो क्या जवाब देते हैं। फिर उसने कहा, सोना, जवाहरात और कीमती चीजें तैयार की गईं। कासिद उन्हें लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार की तरफ रवाना हुए। जब कासिद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, उन्होंने सोना और तोहफा पेश किया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे देखा भी नहीं। क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। कासिद परेशान हो गए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सख्त पैगाम दिया, उनके पास वापस जाओ। अगर वो हक को कबूल न करें तो हम ऐसी फौज के साथ आएंगे जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कीस ने सब कुछ सुना और समझ गई कि ये आम बादशाह नहीं है। फिर उसने फैसला किया, वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम से मिलने जाएगी। बिल्कीस के रवाना होने से पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में कहा, कौन है जो उसका तख्त मेरे पास ले आए उसके पहुंचने से पहले? एक जिन बोला, मैं आपके उठने से पहले तख्त ले आऊंगा। मगर एक और शख्स जिसे किताब का इल्म था बोला, मैं आपकी निगाह वापस आने से पहले ले आऊंगा। और चंद लम्हों में बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद था। बिल्कीस जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची, क्या तुम्हारा तख्त इस जैसा है? बिल्कीस ने गौर से देखा, फिर कहा, ये उसी जैसा लगता है। जमीन शफ्फाफ शीशे की थी, दूर से पानी जैसी लग रही थी। बिल्कीस ने कपड़ा उठाया ताकि पानी में कदम रख सके। ये शीशे का फर्श है। उस लम्हे बिल्कीस समझ गईं। उसने कहा, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सर झुकाती हूँ। एक मलिका ने सूरज की इबादत छोड़कर अल्लाह को पहचान लिया। वक्त गुजरता गया। बिल्कीस का दौर खत्म हुआ। नई नस्लें पैदा हुईं। मारे बांध अब भी खड़ा था। उसके पीछे पानी जमा होता और नहरें फिर खेतों को सींचती थीं। मगर इंसान अक्सर नियामतों की आदत डाल लेता है और आदत शुक्र को कमजोर कर देती है। एक शाम कुछ ताजिर बाग के साए में बैठे थे। हमारी जमीन जैसी कहीं नहीं, पानी भी है, फसल भी है, तिजारत भी। दूसरा हंसकर बोला, जब तक मारिब दाम खरा है हमारी सल्तनत को कुछ नहीं हो सकता। एक बुजुर्ग चुपचाप सुन रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बंद पानी रोक सकता है, तकदीर नहीं। लेकिन कोई नहीं सुना। सफर आसान हो चुका था। शहर करीब करीब थे, लेकिन लोगों को सुकून की कदर नहीं रही। हमारे सफर बहुत आसान हो गए हैं। काश शहरों के दरमियान फसला ज्यादा होता। ये अजीब शिकवा था। आसानी से तंग आ जाना और नेमत की कदर ना करना। इस दौरान बांध के रखवाले ने बांध का जायजा लिया। उन्होंने दरबार को खबर दी, मगरिबी हिस्सा कमजोर हो रहा है, अगर मुरम्मत ना हुई तो खतरा है।
ये बंद सादियों से खरा है। मुरम्मत टलती रही और यही वक्त था जब अल्लाह ने उनको सब्र और नेमत का इम्तिहान दिया। तारीख की किताबों में आता है और अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ने मारे बंद की बुनियादों पर चूहों को काटने के लिए भेजा जो इसे आहिस्ते आहिस्ते कमजोर कर रहा था। छोटे छोटे जानदार जिन्हें लोग नजरअंदाज करते थे, धीरे धीरे पत्थरों और लकड़ियों को खाकर बांध को कमजोर कर रहे थे। फिर एक साल पहाड़ों पर ज्यादा बरसात हुई। तेज रवानी से बांध की तरफ आया। जखीरा भर गया। रात अंधेरी थी, हवा तेज चल रही थी। फिर पत्थरों की घिसने की आवाज आई। एक सिपाही चिल्लाया। दरारों से पानी फूटने लगा। फिर दरार बड़ी हो गई और फिर मारे बांध टूट गया। पानी की दीवार वादी में दौड़ पड़ी। जल्दी जल्दी इस तरफ भागो, जल्दी। बाग डूब गए। नहरें टूट गईं। इस अजाब से बचा ले। अल्लाह हमें माफ कर दे। खेतों की मिट्टी बह गई। खजूर के दरख्त जड़ से उखड़ गए। सदियों की मेहनत एक रात में खत्म हो गई। इस तबाही को तारीख में सैलुल अरिम कहा गया। सुबह जब लोगों ने वादी देखी, सब कुछ बदल चुका था। सब्ज बागों की जगह कांटों और कड़वे दरख्तों ने ले ली। कबाइल अपनी बस्तियां छोड़कर चल दिए। सबा की अजीम सल्तनत टूट गई। और कुरान कहता है, क्या हम न शुक्रे के अलावा किसी को सजा देते हैं? अल्लाह ने उन्हें कहानी बना दिया और उन्हें मुकम्मल तौर पर बिखेर दिया। एक दौर था जब एक मलिका ने सच पहचान लिया था, मगर नस्लें बाद में नेमतों पर गुरूर करने लगीं। उन्होंने बांध पर भरोसा किया। फिर एक रात पानी वापस आ गया। तो सोचो, जब इंसान नेमत पर फख्र करे और देने वाले को भूल जाए तो क्या होता है। अगर आपको ये पुरानी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और कमेंट में लिखें अगले वीडियो में कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और दुआ में कुल मोमिनीन को याद रखिए।